दोस्तों जानेंगे मूवी आवारा पागल दीवाने के बारे में जो कि 2002 में रिलीज़ हुई। एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन तो है ही लेकिन एक ब्लैक कॉमेडी भी है साथ ही साथ फिल्म में। डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्ट करी गई है बाय विक्रम भट्ट और स्टोरी लाइन जो है वो इंस्पायर्ड है बाय द होल नाइन यार्ड्स से, जिसमें कि फीचर करे गए हैं एक्शन सीन्स जिसको कोरियोग्राफ करा है स्टंट डायरेक्टर डायोन लैम ने। वर्कड ऑन द मैट्रिक्स एंड हांगकांग एक्शन फिल्म, जो कि एक फेमस स्टंट डायरेक्टर भी हैं साथ के साथ। बेसिकली नोटेबल फॉर lavish and exotic songs, पिक्चराइजेशन, स्टंट एक्शन सीन्स पे बेस्ड एक फिल्म रही है जिसमें कि अक्षय कुमार, परेश रावल पॉपुलर रहे हैं अपनी कॉमिक केमिस्ट्री को लेकर विद जॉनी लीवर हु प्लेड अ फनी कैरेक्टर कॉल्ड छोटा छतरी। और साथ ही साथ सीक्वल भी आया था फिल्म का दीवाने हुए पागल से, यानी कि दीवाने हुए पागल टाइटल के साथ 2005 में। अदर देन दिस बात करी जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की तो जैसे कि हमने जाना कि एक कॉमेडी भी है साथ ही साथ एक्शन भी है, थोड़ा बहुत पिक्चर को लेके स्टंट भी देखा गया है। प्लॉटिंग जानेंगे कि क्या प्लॉटिंग रही है। स्टोरी सेंटर रहा है ऑन द लीगेसी ऑफ डेड इंडियन अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद पे, who dies of a heart attack. He leaves diamond worth $200 million at the New York Bank, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने थे equally between his son Vikrant, his daughter Preeti and Preeti's husband Guru Gulab Khatri के बीच। तो वहीं to claim the diamonds, all three benefactors must be present at the bank, or if dead, their death certificates must be presented. When shortly after Don's death, Vikrant attempts to eliminate Guru by assassinating the Indian Home Minister in full view of television cameras while disguised as him. When Guru flees to the US disguised as someone else to escape prosecution. Guru moves to the street where Anmol and his family live. अनमोल रिकॉग्नाइज करता है उसको एंड न्यूज़ को, मतलब न्यूज़ से रिकॉग्नाइज करता है वेयर हिज मदर इन लॉ फोर्सेस हिम टू गो टू इंडिया अलॉन्ग विद हिज फादर इन लॉ Maninal to tell Vikrant about Guru and get the reward. But everything turns wrong when Vikrant doesn't give the reward and instead sends Anmol and Maninal back to the US with his hired men. Yeda, Anna, and Chota Chhatri to kill Guru. Later, they find out that Yeda Anna was a double agent. He was working for Guru the whole time because he offered more money. Group receive Vikrant and Preeti at the airport and drive to the hotel. At the hotel, Vikrant is kidnapped by a mysterious group of Chinese goons, जहाँ पे येड़ा अन्ना रिसीव करता है एक फ़ोन कॉल एंड फाइंड्स आउट दैट द किडनैप्ड विक्रांत वाज डुप्लीकेट ऑफ द रियल, यानी कि वो डुप्लीकेट विक्रांत था जो किडनैप हुआ था एंड द रियल वन वाज गोइंग टू कम लेटर बाय प्लेन। They kill the second Vikrant and put his body in a car by the Brooklyn Bridge. With Vikrant's death, Preeti and Guru each get half of the diamonds. When they are outside the bank, a group of policemen arrest them and take them to an unknown desert area. It is revealed that Vikrant is still alive and the first Vikrant was kidnapped by Chinese goons. Vikrant gets the diamond and tries to kill Guru. A fight occurs. At the end of the fight, Guru kills Vikrant. तो फिल्म में मोस्टली जो है फाइटिंग सीन देखे गए हैं डायमंड के पीछे, जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग भी करी गई थी। कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी कोई किसी को मार रहा है। When it's all over, they ask each other to find out who has the diamonds. Anmol has them and says he will give them to Guru if he gives
Preeti a divorce. Guru arrives at the location selected by Anmol and gets the diamonds while giving Anmol the divorce papers. Yeda Anna double crosses Guru and tries to steal the diamonds. Guru wins in a fight and Yeda gives the diamond to Guru while hanging him to a bar and having him stand on Chota Chhatri's shoulders. End में Anmol and his love Preeti are seen going to India, जहाँ पे Anmol's ex-father-in-law gives him some diamonds that he received from Guru. Preeti comments that she didn't know that Guru was so nice. काफ़ी जो है प्लानिंग प्लॉटिंग रही है फिल्म में, जिसकी वजह से फाइटिंग सीन भी रहे हैं और जो डायमंड्स थे जो कि मेजर कॉज रहा है लड़ाई का, वो भी देखा गया है। साथ ही साथ कॉमेडी कॉन्सेप्ट भी रहा है फिल्म में। अदर देन दिस, अवार्ड्स की बात की जाए तो अवार्ड विनिंग फिल्म रही है, जिसमें कि परेश रावल ने अवार्ड विन करा है। साथ ही साथ जॉनी लीवर ने भी फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल और जी सिने अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल भी विन करा है। स्क्रीन अवार्ड्स यानी कि परेश रावल ने 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, फिल्म फेयर, जी सिने और स्क्रीन अवार्ड्स, तीनों ही बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में उन्होंने अपने नाम करे हैं, जबकि जॉनी लीवर नॉमिनेटेड रहे थे फॉर द अवार्ड्स। कास्टिंग की बात की जाए तो अक्षय कुमार वॉज एज गुरु गुलाब खत्री यानी कि बलदेव के एक्स सन इन लॉ के किरदार में देखे गए। सुनील शेट्टी एज येरा अन्ना, परेश रावल रहे एज मनीलाल पटेल, आफ्ताब शिव दसानी देखे गए एज डॉक्टर अनमोल आचार्य, आरती छबरिया एज टीना यानी कि अनमोल के सेक्रेटरी, जॉनी लीवर एज छोटा छत्री, प्रीति झनगियानी एज प्रीति आचार्य, अमृता अरोड़ा एज मोना पटेल, राहुल देव रहे एज विक्रांत यानी कि बलदेव सन, सुप्रिया पिगलोकर एज परमजीत पटेल, ओमपुरी एज डॉन, असरानी एज चंपकलाल देखे गए हैं फिल्म में। तो वही म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक एल्बम जो कि कंपोज करा गया था बाय अनु मलिक की तरफ से म्यूज़िक कंपोजिशन रहा है, तो वहीं लिरिक्स रहे हैं और बाय समीर। गानों की बात की जाए तो टाइटल्ड आवारा पागल दीवाना वॉज संग बाय शान एंड सुनिधि चौहान, जिसे हंसना रोना वॉज संग बाय उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर। तो वहीं लव जो थीम सॉन्ग रहा था उसका डिस्क्लोज नहीं करा गया है कि किसने गाया है, तो वहीं मैंने तो खाई कसम के सिंगर्स रहे सुनिधि चौहान एंड अभिजीत। मोरे सावरिया वॉज संग बाय सुनिधि चौहान, शान एंड अनु मलिक एज वेल। ये तूने क्या किया जो कि फिल्म में यूज़ नहीं करा गया था वॉज संग बाय सोनू निगम एंड अनुराधा पौडवाल। या हबीबी वॉज संग बाय अदनान सामी, शब्बीर कुमार एंड सुनिधि चौहान। फिल्म के जो मोस्टली सॉन्ग्स रहे हैं उनमें कंट्रीब्यूशन रहा है सुनिधि चौहान का और शान का भी, साथ ही साथ उन्हें कंपनी दी है उदित नारायण जी ने, सोनू निगम और अभिजीत एज वेल एज अदनान सामी, शब्बीर कुमार। बात की जाए फिल्म में देखे गए किरदारों से रिलेटेड उनके करियर के बारे में कि किस तरह उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, बेसिकली अक्षय कुमार जो कि लीड हीरो देखे गए हैं फिल्म में, बात करते हैं उनके बारे में, जो कि एक इंडियन बॉर्न नेचुरलाइज्ड कैनेडियन एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी है, मार्शल आर्टिस्ट, टेलीविज़न पर्सनालिटी है, मतलब एक ओवरऑल कंबाइंड पैकेज है फिल्म इंडस्ट्री में। द कमर्शियल हिंदी फिल्म्स में देखे गए हैं, वहीं over 29 years he has appeared in over 100 films
एंड काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं, जिसमें कि फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर है, और एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोलिफिक एक्टर हैं हिंदी सिनेमा के। स्टार हुए हैं 113 फिल्म्स में, और जिसमें कि 52 फिल्म्स वर कमर्शियल सक्सेसफुल। He was the first Bollywood actor whose film's domestic net lifetime collection crossed 20 billion by 2013 or 30 billion by 2016. Other than this, he has begun his career in 1991 with Saugandh. By his first mainstream success came a year later with the action thriller Khiladi movie. The film established him as an action star in the year 1990 and was the first of several films starring Kumar, which would later become commonly known as the Khiladi film series. Addition to the string of other action films, although his early twist with romance in Ye Dil Lagi जो कि 1994 में आई थी, पॉजिटिव रिव्यूज रहे हैं, it was in the next decade that Kumar expanded his range of roles. रिकॉग्निशन मिली है उन्हें अपने रोमांटिक फिल्म्स धड़कन, अंदाज, नमस्ते लंदन एज वेल एज द ड्रामा फिल्म वक्त से, अलॉन्ग विद पटियाला हाउस। तो वहीं कॉमिक परफॉर्मेंस की बात की जाए, लाइक इन द मूवी हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, भूल भुलैया, सिंह इज किंग met with acclaim as well. दोस्तों बात की जाए अगर अवार्ड्स की, तो रेसिपिएंट रहे हैं काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स फ्रॉम 13 nominations as Best Villain for the movie Ajnabi and Best Comedian for Garam Masala, and a National Film Award for Best Actor for the film Rustam and Airlift, जो कि दोनों ही 2016 में आई थी। 2018 में द यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर conferred an honorary doctorate of law on Kumar in recognition of his contribution to Indian cinema. सिर्फ यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। तो वहीं 2011 में द एशियन अवार्ड्स ऑनर्ड कुमार फॉर हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सिनेमा। ये तो रही बात अक्षय कुमार की। जानते हैं फिल्म से जुड़े अगले किरदार के बारे में, जो कि रहे थे सुनील शेट्टी एज येड़ा अन्ना, जो कि अपने आप में ही एक नोन एंटरप्रेन्योर और टीवी पर्सनालिटी है। प्रीडोमिनेटली अपीयर हुए हैं बॉलीवुड फिल्म्स में। करियर स्पैन की बात की जाए तो इक्विवेलेंट है अक्षय कुमार के, यानी कि मोर देन 25 ईयर्स हैं, जिसमें कि he has acted in over 100 films. His major work has been action and comedy films. He received Filmfare Awards out of 5 nominations for the movie धड़कन, जो कि one of the known film रही है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की। Other than this, बात की जाए तो he is the owner of the production house Popcorn Entertainment Private Limited, has produced a number of films including Khel, No Ordinary Game, Rakt and Bhagam Bhag, जो कि उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस के बैनर के अंडर प्रोड्यूस हुई थी। अदर वर्क्स की बात की जाए तो 2019 में ही इन्वेस्टेड एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन अ पुणे बेस्ड ऑनलाइन हेल्थ एंड फिटनेस स्टार्टअप फिटर। इट इज द फाउंडर Jitendra Chokse launched Fitter in January 2016 as a community on Facebook to address the challenges in the fitness industry, जिसमें कि Fitter now claims of over 1 lakh fitness transformations और highly engaged community है of 5,50,000 members की।
जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छा नंबर है टू बिकम अ मेंबर और टू बिकम अ कम्युनिटी इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। दोस्तों जानेंगे मूवी आवारा पागल दीवाने के बारे में, जो कि 2002 में रिलीज़ हुई एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन तो है ही, लेकिन एक ब्लैक कॉमेडी भी है साथ ही साथ फिल्म में। डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्ट करी गई है बाय विक्रम भट्ट, और स्टोरी लाइन जो है वो इंस्पायर्ड है बाय द होल नाइन यार्ड से, जिसमें कि फीचर करे गए हैं एक्शन सीन्स, जिसको कोरियोग्राफ करा है स्टंट डायरेक्टर डायोन लैम ने। वर्कड ऑन द मैट्रिक्स एंड हांगकांग एक्शन फिल्म, जो कि एक फेमस स्टंट डायरेक्टर भी हैं साथ के साथ। Basically notable for lavish and exotic songs, picturization, stunt, action scenes पे बेस्ड एक फिल्म रही है, जिसमें कि अक्षय कुमार, परेश रावल पॉपुलर रहे हैं अपनी कॉमिक केमिस्ट्री को लेकर विद जॉनी लीवर, हु प्लेड अ फनी कैरेक्टर कॉल्ड छोटा छतरी। और साथ ही साथ सीक्वल भी आया था फिल्म का दीवाने हुए पागल से, यानी कि दीवाने हुए पागल टाइटल के साथ 2005 में। अदर देन दिस, बात करी जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो जैसे कि हमने जाना कि एक कॉमेडी भी है साथ ही साथ एक्शन भी है, थोड़ा बहुत पिक्चर को लेके स्टंट भी देखा गया है। प्लॉटिंग जानेंगे कि क्या प्लॉटिंग रही है। स्टोरी सेंटर रहा है ऑन अ लीगेसी ऑफ डेड इंडियन अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद पे, who dies of a heart attack. He leaves diamond worth $200 million at the New York bank, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने थे equally between his son Vikrant, his daughter Preeti and Preeti's husband Guru Gulab Khatri के बीच। तो वहीं to claim the diamonds, all three benefactors must be present at the bank, or if dead, their death certificates must be presented. When shortly after Don's death, Vikrant attempts to eliminate Guru by assassinating the Indian Home Minister in full view of television cameras while disguised as him. When Guru flees to the US disguised as someone else to escape prosecution. Guru moves to the street where Anmol and his family live. अनमोल रिकॉग्नाइज करता है उसको एंड न्यूज़ को, मतलब न्यूज़ से रिकॉग्नाइज करता है, वेयर हिज मदर इन लॉ फोर्सेस हिम टू गो टू इंडिया अलॉन्ग विद हिज फादर इन लॉ Maninal to tell Vikrant about Guru and get the reward. But everything turns wrong when Vikrant doesn't give the reward and instead sends Anmol and Maninal back to the US with his hired men, Yeda, Anna, and Chota Chhatri, to kill Guru. Later, they find out that Yeda Anna was a double agent. He was working for Guru the whole time because he offered more money. Group receive Vikrant and Preeti at the airport and drive to the hotel. At the hotel, Vikrant is kidnapped by a mysterious group of Chinese goons, जहाँ पे येड़ा अन्ना रिसीव करता है एक फ़ोन कॉल एंड फाइंड्स आउट दैट द किडनैप्ड विक्रांत वाज डुप्लीकेट ऑफ द रियल, यानी कि वो डुप्लीकेट विक्रांत था जो किडनैप हुआ था, एंड द रियल वन वाज गोइंग टू कम लेटर बाय प्लेन। They kill the second Vikrant and put his body in a car by the Brooklyn Bridge. With Vikrant's death, Preeti and Guru each get half of the diamonds,
When they are outside the bank, a group of policemen arrest them and take them to an unknown desert area. It is revealed that Vikrant is still alive and the first Vikrant was kidnapped by Chinese goons. Vikrant gets the diamond and tries to kill Guru. A fight occurs. At the end of the fight, Guru kills Vikrant. तो फिल्म में मोस्टली जो है फाइटिंग सीन देखे गए हैं डायमंड के पीछे, जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग भी करी गई थी। कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी कोई किसी को मार रहा है। When it's all over, they ask each other to find out who has the diamonds. Anmol has them and says he will give them to Guru if he gives Preeti a divorce. Guru arrives at the location selected by Anmol and gets the diamonds while giving Anmol the divorce papers. Yeda Anna double crosses Guru and tries to steal the diamonds. Guru wins in a fight and Yeda gives the diamond to Guru while hanging him to a bar and having him stand on Chota Chhatri's shoulders. End में Anmol and his love Preeti are seen going to India, जहाँ पे Anmol's ex-father-in-law gives him some diamonds that he received from Guru. Preeti comments that she didn't know that Guru was so nice. काफ़ी जो है प्लानिंग प्लॉटिंग रही है फिल्म में, जिसकी वजह से फाइटिंग सीन भी रहे हैं और जो डायमंड्स थे जो कि मेजर कॉज रहा है लड़ाई का, वो भी देखा गया है। साथ ही साथ कॉमेडी कॉन्सेप्ट भी रहा है फिल्म में। अदर देन दिस, अवार्ड्स की बात की जाए तो अवार्ड विनिंग फिल्म रही है, जिसमें कि परेश रावल ने अवार्ड विन करा है। साथ ही साथ जॉनी लिवर ने भी फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल और जी सिने अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल भी विन करा है। स्क्रीन अवार्ड्स यानी कि परेश रावल ने 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, फिल्म फेयर, जी सिने और स्क्रीन अवार्ड्स, तीनों ही बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में उन्होंने अपने नाम करे हैं, जबकि जॉनी लिवर नॉमिनेटेड रहे थे फॉर द अवार्ड्स। कास्टिंग की बात की जाए तो अक्षय कुमार वॉज एज गुरु गुलाब खत्री यानी कि बलदेव के एक्स सन इन लॉ के किरदार में देखे गए। सुनील शेट्टी एज येरा अन्ना, परेश रावल रहे एज मनीलाल पटेल, आफ्ताब शिव दसानी देखे गए एज डॉक्टर अनमोल आचार्य, आरती छबरिया एज टीना यानी कि अनमोल के सेक्रेटरी, जॉनी लिवर एज छोटा छत्री, प्रीति झनगियानी एज प्रीति आचार्य, अमृता अरोड़ा एज मोना पटेल, राहुल देव रहे एज विक्रांत यानी कि बलदेव सन, सुप्रिया पिगलोकर एज परमजीत पटेल, ओमपुरी एज डॉन, असरानी एज चंपकलाल देखे गए हैं फिल्म में। तो वही म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक एल्बम जो कि कंपोज करा गया था बाय अनु मलिक की तरफ से म्यूज़िक कंपोजिशन रहा है, तो वहीं लिरिक्स रहे हैं और बाय समीर। गानों की बात की जाए तो टाइटल्ड आवारा पागल दीवाना वॉज संग बाय शान एंड सुनिधि चौहान, जिसे हंसना रोना वॉज संग बाय उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर। तो वहीं लव जो थीम सॉन्ग रहा था उसका डिस्क्लोज नहीं करा गया है कि किसने गाया है, तो वहीं मैंने तो खाई कसम के सिंगर्स रहे सुनिधि चौहान एंड अभिजीत। मोरे सावरिया वॉज संग बाय सुनिधि चौहान, शान एंड अनु मलिक एज वेल। ये तूने क्या किया जो कि फिल्म में यूज़ नहीं करा गया था वॉज संग बाय सोनू निगम एंड अनुराधा पौडवाल। या हबीबी वॉज संग बाय अदनान सामी, शब्बीर कुमार एंड सुनिधि चौहान। फिल्म के जो मोस्टली सॉन्ग्स रहे हैं उनमें कंट्रीब्यूशन रहा है सुनिधि चौहान का और शान का भी साथ ही साथ।
उन्हें कंपनी दी है उदित नारायण जी ने, सोनू निगम और अभिजीत, एज वेल एज अदनान सामी, शब्बीर कुमार। बात की जाए फिल्म में देखे गए किरदारों से रिलेटेड उनके करियर के बारे में कि किस तरह उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। बेसिकली अक्षय कुमार जो कि लीड हीरो देखे गए हैं फिल्म में, बात करते हैं उनके बारे में, जो कि एक इंडियन बॉर्न नेचुरलाइज्ड कैनेडियन एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी है, मार्शल आर्टिस्ट, टेलीविज़न पर्सनालिटी है, मतलब एक ओवरऑल कंबाइंड पैकेज है फिल्म इंडस्ट्री में। द कमर्शियल हिंदी फिल्म्स में देखे गए हैं। वहीं ओवर 29 years ही हैज़ अपीयर्ड इन ओवर 100 फिल्म्स एंड काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं, जिसमें कि फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर है और एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोलिफिक एक्टर हैं हिंदी सिनेमा के। स्टार हुए हैं 113 फिल्म्स में और जिसमें कि 52 फिल्म्स वर कमर्शियल सक्सेसफुल। He was the first Bollywood actor whose film's domestic net lifetime collection crossed 20 billion by 2013 or 30 billion by 2016. Other than this, he has begun his career in 1991 with Saugandh. By his first mainstream success came a year later with the action thriller Khiladi movie. The film established him as an action star in the year 1990 and was the first of several films starring Kumar, which would later become commonly known as the Khiladi film series. Addition to the string of other action films, although his early twist with romance in ये दिल लगी जो कि 1994 में आई थी, पॉजिटिव रिव्यूज रहे हैं। इट वॉज इन द नेक्स्ट डिकेड दैट कुमार एक्सपेंडेड हिज रेंज ऑफ रोल्स। रिकॉग्निशन मिली है उन्हें अपने रोमांटिक फिल्म्स धड़कन, अंदाज, नमस्ते लंदन एज वेल एज द ड्रामा फिल्म वक्त से, अलॉन्ग विद पटियाला हाउस। तो वहीं कॉमिक परफॉर्मेंस की बात की जाए, लाइक इन द मूवी हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, भूल भुलैया, सिंह इज किंग met with acclaim as well. दोस्तों बात की जाए अगर अवार्ड्स की, तो रेसिपिएंट रहे हैं काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स from 13 nominations as Best Villain for the movie Ajnabi and Best Comedian for Garam Masala and a National Film Award for Best Actor for the film Rustam and Airlift, जो कि दोनों ही 2016 में आई थी। 2018 में द यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर conferred an honorary doctorate of law on Kumar in recognition of his contribution to Indian cinema. सिर्फ यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। तो वहीं 2011 में द एशियन अवार्ड्स ऑनर्ड कुमार फॉर हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सिनेमा। ये तो रही बात अक्षय कुमार की। जानते हैं फिल्म से जुड़े अगले किरदार के बारे में, जो कि रहे थे सुनील शेट्टी एज येड़ा अन्ना, जो कि अपने आप में ही एक नोन एंटरप्रेन्योर और टीवी पर्सनालिटी है। प्रीडोमिनेटली अपीयर हुए हैं बॉलीवुड फिल्म्स में। करियर स्पैन की बात की जाए तो इक्विवेलेंट है अक्षय कुमार के, यानी कि मोर देन 25 years हैं, जिसमें कि he has acted in over 100 films. His major work has been action and comedy films. He received Filmfare Awards out of 5 nominations for the movie धड़कन, जो कि one of the known film रही है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की। Other than this, बात की जाए तो he is the owner of the production house Popcorn Entertainment Private Limited,
has produced a number of films including Khel, No Ordinary Game, रक्त एंड भागम भाग जो कि उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस के बैनर के अंडर प्रोड्यूस हुई थी। अदर वर्क्स की बात की जाए तो 2019 में ही इन्वेस्टेड एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन अ पुणे बेस्ड ऑनलाइन हेल्थ एंड फिटनेस स्टार्टअप फिटर जिस द फाउंडर Jitendra Chokse launched Twitter in January 2016 as a community on Facebook to address the challenges in the fitness industry. जिसमें कि Fitter now claims of over 1 lakh fitness transformations और highly engaged community है of 5,50,000 members की जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छा नंबर है to become a member or to become a community in the online world. दोस्तों जानेंगे मूवी आवारा पागल दीवाने के बारे में जो कि 2002 में रिलीज़ हुई एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन तो है ही लेकिन एक ब्लैक कॉमेडी भी है साथ ही साथ फिल्म में। डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्ट करी गई है बाय विक्रम भट्ट और स्टोरी लाइन जो है वो इंस्पायर्ड है बाय द होल 9 यार्ड्स से जिसमें कि फीचर करे गए हैं एक्शन सीन्स जिसको कोरियोग्राफ करा है स्टंट डायरेक्टर डायोन लैम ने। वर्कड ऑन द मैट्रिक्स एंड हांगकांग एक्शन फिल्म जो कि एक फेमस स्टंट डायरेक्टर भी हैं साथ के साथ। Basically notable for lavish and exotic songs, पिक्चराइजेशन स्टंट एक्शन सीन्स पे बेस्ड एक फिल्म रही है जिसमें कि अक्षय कुमार परेश रावल पॉपुलर रहे हैं अपनी कॉमिक केमिस्ट्री को लेकर विद जॉनी लीवर हु प्लेड अ फनी कैरेक्टर कॉल्ड छोटा छतरी और साथ ही साथ सीक्वल भी आया था फिल्म का दीवाने हुए पागल से यानी कि दीवाने हुए पागल टाइटल के साथ 2005 में। अदर देन दिस बात करी जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की तो जैसे कि हमने जाना कि एक कॉमेडी भी है साथ ही साथ एक्शन भी है थोड़ा बहुत पिक्चर को लेके स्टंट भी देखा गया है। प्लॉटिंग जानेंगे कि क्या प्लॉटिंग रही है। स्टोरी सेंटर रहा है ऑन अ लीगेसी ऑफ डेड इंडियन अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद पे who dies of a heart attack. He leaves diamond worth $200 million at the New York Bank जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने थे equally between his son Vikrant, his daughter Preeti and Preeti's husband Guru Gulab Khatri के बीच। तो वहीं to claim the diamonds all three benefactors must be present at the bank or if dead their death certificates must be presented. When shortly after Don's death, Vikrant attempts to eliminate Guru by assassinating the Indian Home Minister in full view of television cameras while disguised as him. When Guru flees to the US disguised as someone else to escape prosecution. Guru moves to the street where Anmol and his family live. अनमोल रिकॉग्नाइज करता है उसको एंड न्यूज़ को मतलब न्यूज़ से रिकॉग्नाइज करता है वेयर हिज मदर इन लॉ फोर्सेस हिम टू गो टू इंडिया अलॉन्ग विद हिज फादर इन लॉ मनीलाल टू टेल विक्रांत अबाउट गुरु एंड गेट द रिवॉर्ड बट एवरीथिंग टर्न्स रॉन्ग व्हेन विक्रांत डजंट गिव द रिवॉर्ड and instead sends Anmol and Maninal back to the US with his hired men. Yeda, Anna and Chota Chhatri to kill Guru. Later they find out that Yeda Anna was a double agent. He was working for Guru the whole time because he offered more money. Group receive Vikrant and Preeti at the airport and drive to the hotel. At the hotel, Vikrant is kidnapped by a mysterious group of Chinese goons जहाँ पे येड़ा अन्ना रिसीव करता है एक फ़ोन कॉल and finds out that the kidnapped Vikrant was a duplicate of the real
यानी कि वो डुप्लीकेट विक्रांत था जो किडनैप हुआ था, एंड द रियल वन वॉज गोइंग टू कम लेटर बाय प्लेन. They killed the second Vikrant and put his body in a car by the Brooklyn Bridge. With Vikrant's death, Preeti and Guru each get half of the diamonds. When they are outside the bank, a group of policemen arrest them and take them to an unknown desert area. It is revealed that Vikrant is still alive and the first Vikrant was kidnapped by Chinese goons. Vikrant gets the diamond and tries to kill Guru. A fight occurs. At the end of the fight, Guru kills Vikrant. तो फिल्म में मोस्टली जो है फाइटिंग सीन देखे गए हैं. डायमंड के पीछे जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग भी करी गई थी. कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी कोई किसी को मार रहा है. When it's all over, they ask each other to find out who has the diamonds. Anmol has them and says he will give them to Guru if he gives Preeti a divorce. Guru arrives at the location selected by Anmol and gets the diamonds while giving Anmol the divorce papers. Yeda Anna double crosses Guru and tries to steal the diamonds. Guru wins in a fight and Yeda gives the diamond to Guru while hanging him to a bar and having him stand on Chota Chhatri's shoulders. End में Anmol and his love Preeti are seen going to India, जहाँ पे Anmol's ex-father-in-law gives him some diamonds that he received from Guru. Preeti comments that she didn't know that Guru was so nice. काफ़ी जो है प्लानिंग प्लॉटिंग रही है फिल्म में, जिसकी वजह से फाइटिंग सीन भी रहे हैं और जो डायमंड्स थे जो कि मेजर कॉज रहा है लड़ाई का, वो भी देखा गया है. साथ ही साथ कॉमेडी कॉन्सेप्ट भी रहा है फिल्म में. अदर देन दिस, अवार्ड्स की बात की जाए तो अवार्ड विनिंग फिल्म रही है, जिसमें कि परेश रावल ने अवार्ड विन करा है. साथ ही साथ जॉनी लिवर ने भी फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल और जी सिने अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल भी विन करा है. स्क्रीन अवार्ड्स यानी कि परेश रावल ने 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं. फिल्म फेयर, जी सिने और स्क्रीन अवार्ड्स तीनों ही बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में उन्होंने अपने नाम करे हैं, जबकि जॉनी लिवर नॉमिनेटेड रहे थे फॉर द अवार्ड्स. कास्टिंग की बात की जाए तो अक्षय कुमार वॉज एज गुरु गुलाब खत्री यानी कि बलदेव के एक्स सन इन लॉ के किरदार में देखे गए. सुनील शेट्टी एज येरा अन्ना. परेश रावल रहे एज मनीलाल पटेल. आफ्ताब शिव दसानी देखे गए एज डॉक्टर अनमोल आचार्य. आरती छबरिया एज टीना यानी कि अनमोल के सेक्रेटरी. जॉनी लिवर एज छोटा छत्री. प्रीति झनगियानी एज प्रीति आचार्य. अमृता अरोड़ा एज मोना पटेल. राहुल देव रहे एज विक्रांत यानी कि बलदेव सन. सुप्रिया पिगलोकर एज परमजीत पटेल. ओमपुरी एज डॉन. असरानी एज चंपकलाल देखे गए हैं फिल्म में. तो वही म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक एल्बम जो कि कंपोज करा गया था बाय अनु मलिक की तरफ से म्यूज़िक कंपोजिशन रहा है. तो वहीं लिरिक्स रहे हैं और बाय समीर. गानों की बात की जाए तो टाइटल्ड आवारा पागल दीवाना वॉज संग बाय शान एंड सुनिधि चौहान. जिसे हंसना रोना वॉज संग बाय उदित नारायण. सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर. तो वहीं लव जो थीम सॉन्ग रहा था उसका डिस्क्लोज नहीं करा गया है कि किसने गाया है. तो वहीं मैंने तो खाई कसम के सिंगर्स रहे सुनिधि चौहान एंड अभिजीत. मोरे सावरिया वॉज संग बाय सुनिधि चौहान, शान एंड अनु मलिक एज वेल. ये तूने क्या किया जो कि फिल्म में यूज़ नहीं करा गया था वॉज संग बाय सोनू निगम एंड अनुराधा पौडवाल.
या हबीबी was sung by Adnan Sami, शब्बीर कुमार एंड सुनिधि चौहान। फिल्म के जो मोस्टली सॉन्ग्स रहे हैं उनमें कंट्रीब्यूशन रहा है सुनिधि चौहान का और शान का भी, साथ ही साथ उन्हें कंपनी दी है उदित नारायण जी ने, सोनू निगम और अभिजीत एज वेल एज अदनान सामी, शब्बीर कुमार। बात की जाए फिल्म में देखे गए किरदारों से रिलेटेड उनके करियर के बारे में कि किस तरह उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। बेसिकली अक्षय कुमार जो कि लीड हीरो देखे गए हैं फिल्म में, बात करते हैं उनके बारे में, जो कि एक इंडियन बॉर्न नेचुरलाइज्ड कैनेडियन एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी है, मार्शल आर्टिस्ट, टेलीविज़न पर्सनालिटी है, मतलब एक ओवरऑल कंबाइंड पैकेज है फिल्म इंडस्ट्री में। द कमर्शियल हिंदी फिल्म्स में देखे गए हैं, वहीं ओवर 29 ईयर्स ही हैज़ अपीयर्ड इन ओवर 100 फिल्म्स एंड काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं, जिसमें कि फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर है और एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोलिफिक एक्टर हैं हिंदी सिनेमा के। स्टार हुए हैं 113 फिल्म्स में और जिसमें कि 52 फिल्म्स वर कमर्शियल सक्सेसफुल। He was the first Bollywood actor whose film's domestic net lifetime collection crossed 20 billion by 2013 or 30 billion by 2016. Other than this, he has begun his career in 1991 with Saugandh. By his first mainstream success came a year later with the action thriller Khiladi movie. The film established him as an action star in the year 1990 and was the first of several films starring Kumar, which would later become commonly known as the Khiladi film series. Addition to the string of other action films, although his early twist with romance in ये दिल लगी जो कि 1994 में आई थी, पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे हैं। It was in the next decade that Kumar expanded his range of roles. रिकॉग्निशन मिली है उन्हें अपने रोमांटिक फिल्म्स धड़कन, अंदाज, नमस्ते लंदन एज वेल एज द ड्रामा फिल्म वक्त से अलॉन्ग विद पटियाला हाउस। तो वहीं कॉमिक परफॉर्मेंस की बात की जाए, लाइक इन द मूवी हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, भूल भुलैया, सिंह इज किंग met with acclaim as well. दोस्तों बात की जाए अगर अवार्ड्स की, तो रेसिपिएंट रहे हैं काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स फ्रॉम 13 nominations as बेस्ट विलन फॉर द मूवी अजनबी and Best Comedian for Garam Masala and a National Film Award for Best Actor for the film Rustam and Airlift, जो कि दोनों ही 2016 में आई थी। 2018 में द यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर conferred an honorary doctorate of law on Kumar in recognition of his contribution to Indian cinema. सिर्फ यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। तो वहीं 2011 में द एशियन अवार्ड्स ऑनर्ड कुमार फॉर हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सिनेमा। ये तो रही बात अक्षय कुमार की। जानते हैं फिल्म से जुड़े अगले किरदार के बारे में, जो कि रहे थे सुनील शेट्टी एज येड़ा अन्ना, जो कि अपने आप में ही एक नोन एंटरप्रेन्योर और टीवी पर्सनालिटी है। प्रीडोमिनेटली अपीयर हुए हैं बॉलीवुड फिल्म्स में। करियर स्पैन की बात की जाए तो इक्विवेलेंट है अक्षय कुमार के, यानी कि मोर देन 25 ईयर्स हैं, जिसमें कि ही हैज़ एक्टेड इन ओवर 100 फिल्म्स। हिज मेजर वर्क हैज़ बीन एक्शन एंड कॉमेडी फिल्म्स। He received Filmfare Awards out of 5 nominations for the movie Dhadkan
जो कि वन ऑफ द नोन फिल्म रही है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की। अदर देन दिस बात की जाए तो ही इज़ द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन हाउस पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, has produced a number of films including Khel, No Ordinary Game, रक्त एंड भागम भाग, जो कि उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस के बैनर के अंडर प्रोड्यूस हुई थी। अदर वर्क्स की बात की जाए तो 2019 में ही इन्वेस्टेड एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन अ पुणे बेस्ड ऑनलाइन हेल्थ एंड फिटनेस स्टार्टअप फिटर. It is the founder Jitendra Chokse launched Fitter in January 2016 as a community on Facebook to address the challenges in the fitness industry, जिसमें कि Fitter now claims of over 1 lakh fitness transformations और highly engaged community है of 5,50,000 members की, जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छा नंबर है to become a member or to become a community in the online world. दोस्तों जानेंगे मूवी आवारा पागल दीवाने के बारे में, जो कि 2002 में रिलीज़ हुई एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन तो है ही, लेकिन एक ब्लैक कॉमेडी भी है साथ ही साथ फिल्म में। डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्ट करी गई है बाय विक्रम भट्ट और स्टोरी लाइन जो है वो इंस्पायर्ड है बाय द होल 9 यार्ड्स से, जिसमें कि फीचर करे गए हैं एक्शन सीन्स जिसको कोरियोग्राफ करा है स्टंट डायरेक्टर डायोन लैम ने। वर्कड ऑन द मैट्रिक्स एंड हांगकांग एक्शन फिल्म, जो कि एक फेमस स्टंट डायरेक्टर भी हैं साथ के साथ। Basically notable for lavish and exotic songs, पिक्चराइजेशन, स्टंट, एक्शन सीन्स पे बेस्ड एक फिल्म रही है, जिसमें कि अक्षय कुमार, परेश रावल पॉपुलर रहे हैं अपनी कॉमिक केमिस्ट्री को लेकर विद जॉनी लीवर हु प्लेड अ फनी कैरेक्टर कॉल्ड छोटा छतरी। और साथ ही साथ सीक्वल भी आया था फिल्म का दीवाने हुए पागल से, यानी कि दीवाने हुए पागल टाइटल के साथ 2005 में। अदर देन दिस बात करी जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो जैसे कि हमने जाना कि एक कॉमेडी भी है साथ ही साथ एक्शन भी है, थोड़ा बहुत पिक्चर को लेके स्टंट भी देखा गया है। प्लॉटिंग जानेंगे कि क्या प्लॉटिंग रही है। स्टोरी सेंटर रहा है ऑन अ लीगेसी ऑफ डेड इंडियन अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद पे, who dies of a heart attack. He leaves diamond worth $200 million at the New York Bank, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने थे equally between his son Vikrant, his daughter Preeti and Preeti's husband Guru Gulab Khatri के बीच। तो वहीं to claim the diamonds, all three benefactors must be present at the bank, or if dead, their death certificates must be presented. वहीं shortly after Don's death, Vikrant attempts to eliminate Guru by assassinating the Indian Home Minister in full view of television cameras while disguised as him. So when Guru flees to the US disguised as someone else to escape prosecution. Guru moves to the street where Anmol and his family live. अनमोल रिकॉग्नाइज करता है उसको एंड न्यूज़ को, मतलब न्यूज़ से रिकॉग्नाइज करता है, वेयर हिज मदर इन लॉ फोर्सेस हिम टू गो टू इंडिया अलॉन्ग विद हिज फादर इन लॉ।
Maninal to tell Vikrant about Guru and get the reward. But everything turns wrong when Vikrant doesn't give the reward and instead sends Anmol and Maninal back to the US with his hired men. Yeda, Anna, and Chota Chhatri to kill Guru. Later, they find out that Yeda Anna was a double agent. He was working for Guru the whole time because he offered more money. Group receive Vikrant and Preeti at the airport and drive to the hotel. At the hotel, Vikrant is kidnapped by a mysterious group of Chinese goons जहाँ पे येड़ा अन्ना रिसीव करता है एक फ़ोन कॉल and finds out that the kidnapped Vikrant was a duplicate of the real. यानी कि वो डुप्लीकेट विक्रांत था जो किडनैप हुआ था and the real one was going to come later by plane. They killed the second Vikrant and put his body in a car by the Brooklyn Bridge. With Vikrant's death, Preeti and Guru each get half of the diamonds. When they are outside the bank, a group of policemen arrest them and take them to an unknown desert area. It is revealed that Vikrant is still alive and the first Vikrant was kidnapped by Chinese goons. Vikrant gets the diamond and tries to kill Guru. A fight occurs. At the end of the fight, Guru kills Vikrant. तो फिल्म में मोस्टली जो है फाइटिंग सीन देखे गए हैं डायमंड के पीछे जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग भी करी गई थी कभी कोई किसी को मार रहा है कभी कोई किसी को मार रहा है When it's all over, they ask each other to find out who has the diamonds. Anmol has them and says he will give them to Guru if he gives Preeti a divorce. Guru arrives at the location selected by Anmol and gets the diamonds while giving Anmol the divorce papers. Yeda Anna double crosses Guru and tries to steal the diamonds. Guru wins in a fight and Yeda gives the diamond to Guru while hanging him to a bar and having him stand on Chota Chhatri's shoulders. End में Anmol and his love Preeti are seen going to India जहाँ पे Anmol's ex-father-in-law gives him some diamonds that he received from Guru. Preeti comments that she didn't know that Guru was so nice. काफ़ी जो है प्लानिंग प्लॉटिंग रही है फिल्म में जिसकी वजह से फाइटिंग सीन भी रहे हैं और जो डायमंड्स थे जो कि मेजर कॉज रहा है लड़ाई का वो भी देखा गया है साथ ही साथ कॉमेडी कॉन्सेप्ट भी रहा है फिल्म में अदर देन दिस अवार्ड्स की बात की जाए तो अवार्ड विनिंग फिल्म रही है जिसमें कि परेश रावल ने अवार्ड विन करा है साथ ही साथ जॉनी लिवर ने भी फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल और जी सिने अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल भी विन करा है स्क्रीन अवार्ड्स यानी कि परेश रावल ने 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं फिल्म फेयर जी सिने और स्क्रीन अवार्ड्स तीनों ही बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में उन्होंने अपने नाम करे हैं जबकि जॉनी लिवर नॉमिनेटेड रहे थे फॉर द अवार्ड्स कास्टिंग की बात की जाए तो अक्षय कुमार वॉज एज गुरु गुलाब खत्री यानी कि बलदेव के एक्स सन इन लॉ के किरदार में देखे गए सुनील शेट्टी एज येड़ा अन्ना परेश रावल रहे एज मनीलाल पटेल आफ्ताब शिव दसानी देखे गए एज डॉक्टर अनमोल आचार्य आरती छबरिया एज टीना यानी कि अनमोल के सेक्रेटरी जॉनी लिवर एज छोटा छत्री प्रीति झनगियानी एज प्रीति आचार्य अमृता अरोड़ा एज मोना पटेल राहुल देव रहे एज विक्रांत यानी कि बलदेव सन सुप्रिया पिगलोकर एज परमजीत पटेल ओमपुरी एज डॉन असरानी एज चंपकलाल देखे गए हैं फिल्म में तो वही म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक एल्बम जो कि कंपोज करा गया था बाय अनु मलिक की तरफ से म्यूज़िक कंपोजिशन रहा है तो वहीं लिरिक्स रहे हैं
और बाय समीर। गानों की बात की जाए तो टाइटल्ड आवारा पागल दीवाना was sung by शान एंड सुनिधि चौहान। जिसे हंसना रोना was sung by उदित नारायण। सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर। तो वहीं लव जो थीम सॉन्ग रहा था उसका डिस्क्लोज नहीं करा गया है कि किसने गाया है। तो वहीं मैंने तो खाई कसम के सिंगर्स रहे सुनिधि चौहान एंड अभिजीत। मोरे सावरिया was sung by सुनिधि चौहान, शान एंड अनु मलिक एज वेल। ये तूने क्या किया जो कि फिल्म में यूज़ नहीं करा गया था was sung by सोनू निगम एंड अनुराधा पौडवाल। या हबीबी was sung by अदनान सामी, शब्बीर कुमार एंड सुनिधि चौहान। फिल्म के जो मोस्टली सॉन्ग्स रहे हैं उनमें कंट्रीब्यूशन रहा है सुनिधि चौहान का और शान का भी। साथ ही साथ उन्हें कंपनी दी है उदित नारायण जी ने, सोनू निगम और अभिजीत एज वेल एज अदनान सामी, शब्बीर कुमार। बात की जाए फिल्म में देखे गए किरदारों से रिलेटेड उनके करियर के बारे में कि किस तरह उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। बेसिकली अक्षय कुमार जो कि लीड हीरो देखे गए हैं फिल्म में, बात करते हैं उनके बारे में, जो कि एक इंडियन बॉर्न नेचुरलाइज्ड कैनेडियन एक्टर हैं। साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी है, मार्शल आर्टिस्ट, टेलीविज़न पर्सनालिटी है। मतलब एक ओवरऑल कंबाइंड पैकेज है फिल्म इंडस्ट्री में। द कमर्शियल हिंदी फिल्म्स में देखे गए हैं। वहीं over 29 years he has appeared in over 100 films एंड काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं, जिसमें कि फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर है और एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोलिफिक एक्टर हैं हिंदी सिनेमा के। स्टार हुए हैं 113 फिल्म्स में और जिसमें कि 52 फिल्म्स वर कमर्शियल सक्सेसफुल। He was the first Bollywood actor whose film's domestic net lifetime collection crossed 20 billion by 2013 or 30 billion by 2016. Other than this, he has begun his career in 1991 with Saugandh. By his first mainstream success came a year later with the action thriller Khiladi movie. The film established him as an action star in the year 1990 and was the first of several films starring Kumar, which would later become commonly known as the Khiladi film series. Addition to the string of other action films, although his early twist with romance in ये दिल लगी जो कि 1994 में आई थी, पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे हैं। इट वॉज इन द नेक्स्ट डिकेड दैट कुमार एक्सपेंडेड हिज रेंज ऑफ रोल्स। रिकॉग्निशन मिली है उन्हें अपने रोमांटिक फिल्म्स धड़कन, अंदाज, नमस्ते लंदन एज वेल एज द ड्रामा फिल्म वक्त से, अलॉन्ग विद पटियाला हाउस। तो वहीं कॉमिक परफॉर्मेंस की बात की जाए, लाइक इन द मूवी हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, भूल भुलैया, सिंह इज किंग met with acclaim as well. दोस्तों बात की जाए अगर अवार्ड्स की तो रेसिपिएंट रहे हैं काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स from 13 nominations as Best Villain for the movie Ajnabi and Best Comedian for Garam Masala and a National Film Award for Best Actor for the film Rustam and Airlift जो कि दोनों ही 2016 में आई थी। 2018 में द यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर conferred an honorary doctorate of law on Kumar in recognition of his contribution to Indian cinema. सिर्फ यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं
तो वहीं 2011 में द एशियन अवार्ड्स ऑनर्ड कुमार फॉर हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सिनेमा। ये तो रही बात अक्षय कुमार की। जानते हैं फिल्म से जुड़े अगले किरदार के बारे में, जो कि रहे थे सुनील शेट्टी एज येड़ा अन्ना, जो कि अपने आप में ही एक नोन एंटरप्रेन्योर और टीवी पर्सनालिटी है। प्रीडोमिनेटली अपीयर हुए हैं बॉलीवुड फिल्म्स में। करियर स्पैन की बात की जाए तो इक्विवेलेंट है अक्षय कुमार के, यानी कि मोर देन 25 ईयर्स हैं, जिसमें कि ही हैज़ एक्टेड इन ओवर 100 फिल्म्स। His major work has been action and comedy films. He received Filmfare Awards out of 5 nominations for the movie धड़कन, जो कि वन ऑफ द नोन फिल्म रही है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की। अदर देन दिस बात की जाए तो ही इज़ द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन हाउस पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हैज़ प्रोड्यूस्ड a number of films including खेल, नो ऑर्डिनरी गेम, रक्त एंड भागम भाग, जो कि उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस के बैनर के अंडर प्रोड्यूस हुई थी। अदर वर्क्स की बात की जाए तो 2019 में ही इन्वेस्टेड एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन अ पुणे बेस्ड ऑनलाइन हेल्थ एंड फिटनेस स्टार्टअप फिटर। इट इज द फाउंडर Jitendra Chokse launched Fitter in January 2016 as a community on Facebook to address the challenges in the fitness industry, जिसमें कि Fitter now claims of over 1 lakh fitness transformations और highly engaged community है of 5,50,000 members की, जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छा नंबर है to become a member or to become a community in the online world. दोस्तों जानेंगे मूवी आवारा पागल दीवाने के बारे में, जो कि 2002 में रिलीज़ हुई एक हिंदी लैंग्वेज की। एक्शन तो है ही, लेकिन एक ब्लैक कॉमेडी भी है साथ ही साथ फिल्म में। डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्ट करी गई है बाय विक्रम भट्ट, और स्टोरी लाइन जो है वो इंस्पायर्ड है बाय द होल 9 यार्ड्स से, जिसमें कि फीचर करे गए हैं एक्शन सीन्स, जिसको कोरियोग्राफ करा है स्टंट डायरेक्टर डायोन लैम ने। वर्कड ऑन द मैट्रिक्स एंड हांगकांग एक्शन फिल्म, जो कि एक फेमस स्टंट डायरेक्टर भी हैं साथ के साथ।
Basically notable for lavish and exotic songs, picturization, stunt, action scenes पे बेस्ड एक फिल्म रही है जिसमें कि अक्षय कुमार परेश रावल पॉपुलर रहे हैं अपनी कॉमिक केमिस्ट्री को लेकर विद जॉनी लीवर हु प्लेड अ फनी कैरेक्टर कॉल्ड छोटा छतरी और साथ ही साथ सीक्वल भी आया था फिल्म का दीवाने हुए पागल से यानी कि दीवाने हुए पागल टाइटल के साथ 2005 में। अदर देन दिस बात करी जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की तो जैसे कि हमने जाना कि एक कॉमेडी भी है साथ ही साथ एक्शन भी है थोड़ा बहुत पिक्चर को लेके स्टंट भी देखा गया है। प्लॉटिंग जानेंगे कि क्या प्लॉटिंग रही है। स्टोरी सेंटर रहा है ऑन द लीगेसी ऑफ डेड इंडियन अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद पे who dies of a heart attack. He leaves diamond worth $200 million at the New York bank जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने थे equally between his son Vikrant, his daughter Preeti and Preeti's husband Guru Gulab Khatri के बीच। तो वहीं to claim the diamonds all three benefactors must be present at the bank or if dead their death certificates must be presented. When shortly after Don's death, Vikrant attempts to eliminate Guru by assassinating the Indian Home Minister in full view of television cameras while disguised as him. When Guru flees to the US disguised as someone else to escape prosecution. Guru moves to the street where Anmol and his family live. अनमोल रिकॉग्नाइज करता है उसको एंड न्यूज़ को मतलब न्यूज़ से रिकॉग्नाइज करता है वेयर हिज मदर इन लॉ फोर्सेस हिम टू गो टू इंडिया अलॉन्ग विद हिज फादर इन लॉ मनीलाल टू टेल विक्रांत अबाउट गुरु एंड गेट द रिवॉर्ड बट एवरीथिंग टर्न्स रॉन्ग व्हेन विक्रांत डजंट गिव द रिवॉर्ड and instead sends Anmol and Maninal back to the US with his hired men. Yeda, Anna, and Chota Chhatri to kill Guru. Later, they find out that Yeda Anna was a double agent. He was working for Guru the whole time because he offered more money. Group receive Vikrant and Preeti at the airport and drive to the hotel. At the hotel, Vikrant is kidnapped by a mysterious group of Chinese goons जहाँ पे येड़ा अन्ना रिसीव करता है एक फ़ोन कॉल एंड फाइंड्स आउट दैट द किडनैप्ड विक्रांत वाज डुप्लीकेट ऑफ द रियल यानी कि वो डुप्लीकेट विक्रांत था जो किडनैप हुआ था एंड द रियल वन वाज गोइंग टू कम लेटर बाय प्लेन दे किल द सेकंड विक्रांत एंड पुट हिज बॉडी इन अ कार बाय द Brooklyn Bridge. With Vikrant's death, Preeti and Guru each get half of the diamonds. When they are outside the bank, a group of policemen arrest them and take them to an unknown desert area. It is revealed that Vikrant is still alive and the first Vikrant was kidnapped by Chinese goons. Vikrant gets the diamond and tries to kill Guru. A fight occurs. At the end of the fight, Guru kills Vikrant. तो फिल्म में मोस्टली जो है फाइटिंग सीन देखे गए हैं डायमंड के पीछे जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग भी करी गई थी कभी कोई किसी को मार रहा है कभी कोई किसी को मार रहा है When it's all over, they ask each other to find out who has the diamonds. Anmol has them and says he will give them to Guru if he gives Preeti a divorce. Guru arrives at the location selected by Anmol and gets the diamonds while giving Anmol the divorce papers. Yeda Anna double crosses Guru and tries to steal the diamonds. Guru wins in a fight and Yeda gives the diamond to Guru while hanging him to a bar and having him stand on Chota Chhatri's shoulders. End में Anmol and his love Preeti are seen going to India जहाँ पे अनमोल्स ex father-in-law gives him some diamonds that he received from Guru. Preeti comments that she didn't know that Guru was so nice.
काफ़ी जो है प्लानिंग प्लॉटिंग रही है फिल्म में, जिसकी वजह से फाइटिंग सीन भी रहे हैं और जो डायमंड्स थे जो कि मेजर कॉज रहा है लड़ाई का, वो भी देखा गया है। साथ ही साथ कॉमेडी कॉन्सेप्ट भी रहा है फिल्म में। अदर देन दिस, अवार्ड्स की बात की जाए तो अवार्ड विनिंग फिल्म रही है, जिसमें कि परेश रावल ने अवार्ड विन करा है। साथ ही साथ जॉनी लीवर ने भी फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल और जी सिने अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल भी विन करा है। स्क्रीन अवार्ड्स यानी कि परेश रावल ने 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, फिल्म फेयर, जी सिने और स्क्रीन अवार्ड्स, तीनों ही बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में उन्होंने अपने नाम करे हैं, जबकि जॉनी लीवर नॉमिनेटेड रहे थे फॉर द अवार्ड्स। कास्टिंग की बात की जाए तो अक्षय कुमार वॉज एज गुरु गुलाब खत्री यानी कि बलदेव के एक्स सन इन लॉ के किरदार में देखे गए। सुनील शेट्टी एज येरा अन्ना, परेश रावल रहे एज मनीलाल पटेल, आफ्ताब शिव दसानी देखे गए एज डॉक्टर अनमोल आचार्य, आरती छबरिया एज टीना यानी कि अनमोल के सेक्रेटरी, जॉनी लीवर एज छोटा छतरी, प्रीति झनगियानी एज प्रीति आचार्य, अमृता अरोड़ा एज मोना पटेल, राहुल देव रहे एज विक्रांत यानी कि बलदेव सन, सुप्रिया पिगलोकर एज परमजीत पटेल, ओमपुरी एज डॉन, असरानी एज चंपकलाल देखे गए हैं फिल्म में। तो वही म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक एल्बम जो कि कंपोज करा गया था बाय अनु मलिक की तरफ से म्यूज़िक कंपोजिशन रहा है, तो वहीं लिरिक्स रहे हैं और बाय समीर। गानों की बात की जाए तो टाइटल्ड आवारा पागल दीवाना वॉज संग बाय शान एंड सुनिधि चौहान, जिसे हंसना रोना वॉज संग बाय उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर। तो वहीं लव जो थीम सॉन्ग रहा था उसका डिस्क्लोज नहीं करा गया है कि किसने गाया है, तो वहीं मैंने तो खाई कसम के सिंगर्स रहे सुनिधि चौहान एंड अभिजीत। मोरे सावरिया वॉज संग बाय सुनिधि चौहान, शान एंड अनु मलिक एज वेल। ये तूने क्या किया जो कि फिल्म में यूज़ नहीं करा गया था वॉज संग बाय सोनू निगम एंड अनुराधा पौडवाल। या हबीबी वॉज संग बाय अदनान सामी, शब्बीर कुमार एंड सुनिधि चौहान। फिल्म के जो मोस्टली सॉन्ग्स रहे हैं उनमें कंट्रीब्यूशन रहा है सुनिधि चौहान का और शान का भी, साथ ही साथ उन्हें कंपनी दी है उदित नारायण जी ने, सोनू निगम और अभिजीत एज वेल एज अदनान सामी, शब्बीर कुमार। बात की जाए फिल्म में देखे गए किरदारों से रिलेटेड उनके करियर के बारे में कि किस तरह उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, बेसिकली अक्षय कुमार जो कि लीड हीरो देखे गए हैं फिल्म में, बात करते हैं उनके बारे में, जो कि एक इंडियन बॉर्न नेचुरलाइज्ड कैनेडियन एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी है, मार्शल आर्टिस्ट, टेलीविज़न पर्सनालिटी है, मतलब एक ओवरऑल कंबाइंड पैकेज है फिल्म इंडस्ट्री में। द कमर्शियल हिंदी फिल्म्स में देखे गए हैं। वहीं ओवर 29 ईयर्स ही हैज़ अपीयर्ड इन ओवर 100 फिल्म्स एंड काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं, जिसमें कि फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर है और एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोलिफिक एक्टर हैं हिंदी सिनेमा के। स्टार हुए हैं 113 फिल्म्स में और जिसमें कि 52 फिल्म्स वर कमर्शियल सक्सेसफुल। He was the first Bollywood actor whose film's domestic net lifetime collection crossed 20 billion by 2013 or 30 billion by 2016.
Other than this, he has begun his career in 1991 with Sogandh. By his first mainstream success came a year later with the action thriller Khiladi movie. The film established him as an action star in the year 1990 and was the first of several films starring Kumar, which would later become commonly known as the Khiladi film series. Addition to the string of other action films, although his early twist with romance in ये दिल लगी जो कि 1994 में आई थी पॉजिटिव रिव्यूज रहे हैं, it was in the next decade that Kumar expanded his range of roles. Recognition मिली है उन्हें अपने रोमांटिक फिल्म्स धड़कन, अंदाज, नमस्ते लंदन as well as the drama film वक्त से along with पटियाला हाउस. तो वहीं कॉमिक परफॉर्मेंस की बात की जाए लाइक इन द मूवी हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, भूल भुलैया, सिंह इज किंग met with acclaim as well. दोस्तों बात की जाए अगर अवार्ड्स की तो रेसिपिएंट रहे हैं काफ़ी सारे अवार्ड्स के जिसमें कि 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स फ्रॉम 13 nominations as Best Villain for the movie Ajnabi and Best Comedian for Garam Masala and a National Film Award for Best Actor for the film Rustam and Airlift जो कि दोनों ही 2016 में आई थी. 2018 में द यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर conferred an honorary doctorate of law on Kumar in recognition of his contribution to Indian cinema. सिर्फ यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं. तो वहीं 2011 में द एशियन अवार्ड्स ऑनर्ड कुमार फॉर हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सिनेमा. ये तो रही बात अक्षय कुमार की. जानते हैं फिल्म से जुड़े अगले किरदार के बारे में जो कि रहे थे सुनील शेट्टी एज येड़ा अन्ना जो कि अपने आप में ही एक नोन एंटरप्रेन्योर और टीवी पर्सनालिटी है. प्रीडोमिनेटली अपीयर हुए हैं बॉलीवुड फिल्म्स में. करियर स्पैन की बात की जाए तो इक्विवेलेंट है अक्षय कुमार के यानी कि मोर देन 25 ईयर्स हैं जिसमें कि he has acted in over 100 films. His major work has been action and comedy films. He received Filmfare Awards out of 5 nominations for the movie धड़कन जो कि one of the known film रही है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की. Other than this, बात की जाए तो he is the owner of the production house Popcorn Entertainment Private Limited, has produced a number of films including Khel, No Ordinary Game, रक्त and भागम भाग जो कि उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस के बैनर के अंडर प्रोड्यूस हुई थी. अदर वर्क्स की बात की जाए तो 2019 में ही इन्वेस्टेड एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन अ पुणे बेस्ड ऑनलाइन हेल्थ एंड फिटनेस स्टार्टअप फिटर. इट इज द फाउंडर Jitendra Chokse launched Fitter in January 2016 as a community on Facebook to address the challenges in the fitness industry. जिसमें कि Fitter now claims of over 1 lakh fitness transformations और highly engaged community है of 5,50,000 members की जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छा नंबर है to become a member or to become a community in the online world.
दोस्तों जानेंगे मूवी आवारा पागल दीवाने के बारे में, जो कि 2002 में रिलीज़ हुई। एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन तो है ही, लेकिन एक ब्लैक कॉमेडी भी है साथ ही साथ फिल्म में। डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्ट करी गई है बाय विक्रम भट्ट, और स्टोरी लाइन जो है वो इंस्पायर्ड है बाय द होल नाइन यार्ड से, जिसमें कि फीचर करे गए हैं एक्शन सीन्स, जिसको कोरियोग्राफ करा है स्टंट डायरेक्टर डायोन लैम ने। वर्कड ऑन द मैट्रिक्स एंड हांगकांग एक्शन फिल्म, जो कि एक फेमस स्टंट डायरेक्टर भी हैं साथ के साथ। Basically notable for lavish and exotic songs, picturization, stunt, action scenes पे बेस्ड एक फिल्म रही है, जिसमें कि अक्षय कुमार, परेश रावल पॉपुलर रहे हैं अपनी कॉमिक केमिस्ट्री को लेकर विद जॉनी लीवर, हु प्लेड अ फनी कैरेक्टर कॉल्ड छोटा छतरी। और साथ ही साथ सीक्वल भी आया था फिल्म का दीवाने हुए पागल से, यानी कि दीवाने हुए पागल टाइटल के साथ 2005 में। अदर देन दिस, बात करी जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो जैसे कि हमने जाना कि एक कॉमेडी भी है साथ ही साथ एक्शन भी है, थोड़ा बहुत पिक्चर को लेके स्टंट भी देखा गया है। प्लॉटिंग जानेंगे कि क्या प्लॉटिंग रही है। स्टोरी सेंटर रहा है ऑन अ लीगेसी ऑफ डेड इंडियन अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद पे, who dies of a heart attack. He leaves diamond worth $200 million at the New York bank, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने थे equally between his son Vikrant, his daughter Preeti and Preeti's husband Guru Gulab Khatri के बीच। तो वहीं to claim the diamonds, all three benefactors must be present at the bank, or if dead, their death certificates must be presented. When shortly after Don's death, Vikrant attempts to eliminate Guru by assassinating the Indian Home Minister in full view of television cameras while disguised as him. When Guru flees to the US disguised as someone else to escape prosecution. Guru moves to the street where Anmol and his family live. अनमोल रिकॉग्नाइज करता है उसको एंड न्यूज़ को, मतलब न्यूज़ से रिकॉग्नाइज करता है, वेयर हिज मदर इन लॉ फोर्सेस हिम टू गो टू इंडिया अलॉन्ग विद हिज फादर इन लॉ Maninal to tell Vikrant about Guru and get the reward. But everything turns wrong when Vikrant doesn't give the reward and instead sends Anmol and Maninal back to the US with his hired men, Yeda, Anna and Chota Chhatri, to kill Guru. Later they find out that Yeda Anna was a double agent. He was working for Guru the whole time because he offered more money. Group receive Vikrant and Preeti at the airport and drive to the hotel. At the hotel, Vikrant is kidnapped by a mysterious group of Chinese goons, जहाँ पे येड़ा अन्ना रिसीव करता है एक फ़ोन कॉल एंड फाइंड्स आउट दैट द किडनैप्ड विक्रांत वाज डुप्लीकेट ऑफ द रियल, यानी वो डुप्लीकेट विक्रांत था जो किडनैप हुआ था, एंड द रियल वन वाज गोइंग टू कम लेटर बाय प्लेन. They kill the second Vikrant and put his body in a car by the Brooklyn Bridge. With Vikrant's death, Preeti and Guru each get half of the diamonds. When they are outside the bank, a group of policemen arrest them and take them to an unknown desert area. It is revealed that Vikrant is still alive and the first Vikrant was kidnapped by Chinese goons. Vikrant gets the diamond and tries to kill Guru. A fight occurs. At the end of the fight, Guru kills Vikrant. तो फिल्म में मोस्टली जो है फाइटिंग सीन देखे गए हैं डायमंड के पीछे, जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग भी करी गई थी. कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी कोई किसी को मार रहा है. When it's all over, they ask each other to find out who has the diamonds. Anmol has them and says he will give them to Guru if he gives
Preeti a divorce. Guru arrives at the location selected by Anmol and gets the diamonds while giving Anmol the divorce papers. Yeda Anna double crosses Guru and tries to steal the diamonds. Guru wins in a fight and Yeda gives the diamond to Guru while hanging him to a bar and having him stand on Chota Chhatri's shoulders. End में Anmol and his love Preeti are seen going to India, जहाँ पे Anmol's ex-father-in-law gives him some diamonds that he received from Guru. Preeti comments that she didn't know that Guru was so nice. काफ़ी जो है प्लानिंग प्लॉटिंग रही है फिल्म में, जिसकी वजह से फाइटिंग सीन भी रहे हैं और जो डायमंड्स थे जो कि मेजर कॉज रहा है लड़ाई का, वो भी देखा गया है। साथ ही साथ कॉमेडी कॉन्सेप्ट भी रहा है फिल्म में। अदर देन दिस, अवार्ड्स की बात की जाए तो अवार्ड विनिंग फिल्म रही है, जिसमें कि परेश रावल ने अवार्ड विन करा है। साथ ही साथ जॉनी लिवर ने भी फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल और जी सिने अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल भी विन करा है। स्क्रीन अवार्ड्स यानी कि परेश रावल ने 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, फिल्म फेयर, जी सिने और स्क्रीन अवार्ड्स, तीनों ही बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में उन्होंने अपने नाम करे हैं, जबकि जॉनी लिवर नॉमिनेटेड रहे थे फॉर द अवार्ड्स। कास्टिंग की बात की जाए तो अक्षय कुमार वॉज एज गुरु गुलाब खत्री यानी कि बलदेव के एक्स सन इन लॉ के किरदार में देखे गए। सुनील शेट्टी एज येड़ा अन्ना, परेश रावल रहे एज मनीलाल पटेल, आफ्ताब शिव दसानी देखे गए एज डॉक्टर अनमोल आचार्य, आरती छबरिया एज टीना यानी कि अनमोल के सेक्रेटरी, जॉनी लिवर एज छोटा छत्री, प्रीति झनगियानी एज प्रीति आचार्य, अमृता अरोड़ा एज मोना पटेल, राहुल देव रहे एज विक्रांत यानी कि बलदेव सन, सुप्रिया पिगलोकर एज परमजीत पटेल, ओमपुरी एज डॉन, असरानी एज चंपकलाल देखे गए हैं फिल्म में। तो वही म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक एल्बम जो कि कंपोज करा गया था बाय अनु मलिक की तरफ से म्यूज़िक कंपोजिशन रहा है, तो वहीं लिरिक्स रहे हैं और बाय समीर। गानों की बात की जाए तो टाइटल्ड आवारा पागल दीवाना वॉज संग बाय शान एंड सुनिधि चौहान, जिसे हंसना रोना वॉज संग बाय उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर। तो वहीं लव जो थीम सॉन्ग रहा था उसका डिस्क्लोज नहीं करा गया है कि किसने गाया है, तो वहीं मैंने तो खाई कसम के सिंगर्स रहे सुनिधि चौहान एंड अभिजीत। मोरे सावरिया वॉज संग बाय सुनिधि चौहान, शान एंड अनु मलिक एज वेल। ये तूने क्या किया जो कि फिल्म में यूज़ नहीं करा गया था वॉज संग बाय सोनू निगम एंड अनुराधा पौडवाल। या हबीबी वॉज संग बाय अदनान सामी, शब्बीर कुमार एंड सुनिधि चौहान। फिल्म के जो मोस्टली सॉन्ग्स रहे हैं उनमें कंट्रीब्यूशन रहा है सुनिधि चौहान का और शान का भी, साथ ही साथ उन्हें कंपनी दी है उदित नारायण जी ने, सोनू निगम और अभिजीत एज वेल एज अदनान सामी, शब्बीर कुमार। बात की जाए फिल्म में देखे गए किरदारों से रिलेटेड उनके करियर के बारे में कि किस तरह उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, बेसिकली अक्षय कुमार जो कि लीड हीरो देखे गए हैं फिल्म में, बात करते हैं उनके बारे में, जो कि एक इंडियन बॉर्न नेचुरलाइज्ड कैनेडियन एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी है, मार्शल आर्टिस्ट, टेलीविज़न पर्सनालिटी है, मतलब एक ओवरऑल कंबाइंड पैकेज है फिल्म इंडस्ट्री में। द कमर्शियल हिंदी फिल्म्स में देखे गए हैं। वहीं over 29 years he has appeared in over 100 films
एंड काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं, जिसमें कि फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर है, और एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोलिफिक एक्टर हैं हिंदी सिनेमा के। स्टार हुए हैं 113 फिल्म्स में, और जिसमें कि 52 फिल्म्स वर कमर्शियल सक्सेसफुल। He was the first Bollywood actor whose film's domestic net lifetime collection crossed 20 billion by 2013 or 30 billion by 2016. Other than this, he has begun his career in 1991 with Saugandh. By his first mainstream success came a year later with the action thriller Khiladi movie. The film established him as an action star in the year 1990 and was the first of several films starring Kumar, which would later become commonly known as the Khiladi film series. Addition to the string of other action films, although his early twist with romance in Ye Dil Lagi जो कि 1994 में आई थी, पॉजिटिव रिव्यूज रहे हैं. It was in the next decade that Kumar expanded his range of roles. रिकॉग्निशन मिली है उन्हें अपने रोमांटिक फिल्म्स धड़कन, अंदाज, नमस्ते लंदन एज वेल एज द ड्रामा फिल्म वक्त से, अलॉन्ग विद पटियाला हाउस. तो वहीं कॉमिक परफॉर्मेंस की बात की जाए, लाइक इन द मूवी हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, भूल भुलैया, सिंह इज किंग met with acclaim as well. दोस्तों बात की जाए अगर अवार्ड्स की, तो रेसिपिएंट रहे हैं काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स from 13 nominations as Best Villain for the movie Ajnabi and Best Comedian for Garam Masala, and a National Film Award for Best Actor for the film Rustam and Airlift, जो कि दोनों ही 2016 में आई थी. 2018 में द यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर conferred an honorary doctorate of law on Kumar in recognition of his contribution to Indian cinema. सिर्फ यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं. तो वहीं 2011 में द एशियन अवार्ड्स ऑनर्ड कुमार फॉर हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सिनेमा. ये तो रही बात अक्षय कुमार की. जानते हैं फिल्म से जुड़े अगले किरदार के बारे में, जो कि रहे थे सुनील शेट्टी एज येड़ा अन्ना, जो कि अपने आप में ही एक नोन एंटरप्रेन्योर और टीवी पर्सनालिटी है. प्रीडोमिनेटली अपीयर हुए हैं बॉलीवुड फिल्म्स में. करियर स्पैन की बात की जाए तो इक्विवेलेंट है अक्षय कुमार के, यानी कि मोर देन 25 ईयर्स हैं, जिसमें कि he has acted in over 100 films. His major work has been action and comedy films. He received Filmfare Awards out of 5 nominations for the movie धड़कन, जो कि one of the known film रही है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की. Other than this, बात की जाए तो he is the owner of the production house Popcorn Entertainment Private Limited, has produced a number of films including Khel, No Ordinary Game, Rakt and Bhagam Bhag, जो कि उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस के बैनर के अंडर प्रोड्यूस हुई थी. अदर वर्क्स की बात की जाए तो 2019 में ही इन्वेस्टेड एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन अ पुणे बेस्ड ऑनलाइन हेल्थ एंड फिटनेस स्टार्टअप फिटर. इज द फाउंडर Jitendra Chokse launched Fitter in January 2016 as a community on Facebook to address the challenges in the fitness industry, जिसमें कि Fitter now claims of over 1 lakh fitness transformations और highly engaged community है of 5,50,000 members की.
जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छा नंबर है टू बिकम अ मेंबर और टू बिकम अ कम्युनिटी इन द ऑनलाइन वर्ल्ड।
दोस्तों जानेंगे मूवी आवारा पागल दीवाने के बारे में, जो कि 2002 में रिलीज हुई एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन तो है ही, लेकिन एक ब्लैक कॉमेडी भी है साथ ही साथ फिल्म में। डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्ट करी गई है बाय विक्रम भट्ट, और स्टोरी लाइन जो है वो इंस्पायर्ड है बाय द होल नाइन यार्ड्स से, जिसमें कि फीचर करे गए हैं एक्शन सीन्स, जिसको कोरियोग्राफ करा है स्टंट डायरेक्टर डायोन लैम ने। वर्कड ऑन द मैट्रिक्स एंड हांगकांग एक्शन फिल्म, जो कि एक फेमस स्टंट डायरेक्टर भी हैं साथ के साथ। Basically notable for lavish and exotic songs, picturization, stunt, action scenes पे बेस्ड एक फिल्म रही है, जिसमें कि अक्षय कुमार, परेश रावल पॉपुलर रहे हैं अपनी कॉमिक केमिस्ट्री को लेकर विद जॉनी लीवर, हु प्लेड अ फनी कैरेक्टर कॉल्ड छोटा छतरी। और साथ ही साथ सीक्वल भी आया था फिल्म का दीवाने हुए पागल से, यानी कि दीवाने हुए पागल टाइटल के साथ 2005 में। अदर देन दिस, बात करी जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो जैसे कि हमने जाना कि एक कॉमेडी भी है साथ ही साथ एक्शन भी है, थोड़ा बहुत पिक्चर को लेके स्टंट भी देखा गया है। प्लॉटिंग जानेंगे कि क्या प्लॉटिंग रही है। स्टोरी सेंटर रहा है ऑन अ लीगेसी ऑफ डेड इंडियन अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद पे, who dies of a heart attack. He leaves diamond worth $200 million at the New York bank, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने थे equally between his son Vikrant, his daughter Preeti and Preeti's husband Guru Gulab Khatri के बीच। तो when to claim the diamonds, all three benefactors must be present at the bank, or if dead, their death certificates must be presented. When shortly after Don's death, Vikrant attempts to eliminate Guru by assassinating the Indian Home Minister in full view of television cameras while disguised as him. When Guru flees to the US disguised as someone else to escape prosecution. Guru moves to the street where Anmol and his family live. अनमोल रिकॉग्नाइज करता है उसको एंड न्यूज़ को, मतलब न्यूज़ से रिकॉग्नाइज करता है, वेयर हिज मदर इन लॉ फोर्सेस हिम टू गो टू इंडिया अलॉन्ग विद हिज फादर इन लॉ Maninal to tell Vikrant about Guru and get the reward. But everything turns wrong when Vikrant doesn't give the reward and instead sends Anmol and Maninal back to the US with his hired men, Yeda, Anna, and Chota Chhatri, to kill Guru. Later, they find out that Yeda Anna was a double agent. He was working for Guru the whole time because he offered more money. Group receive Vikrant and Preeti at the airport and drive to the hotel. At the hotel, Vikrant is kidnapped by a mysterious group of Chinese goons, जहाँ पे येड़ा अन्ना रिसीव करता है एक फ़ोन कॉल एंड फाइंड्स आउट दैट द किडनैप्ड विक्रांत वाज डुप्लीकेट ऑफ द रियल, यानी कि वो डुप्लीकेट विक्रांत था जो किडनैप हुआ था एंड द रियल वन वाज गोइंग टू कम लेटर बाय प्लेन. They kill the second Vikrant and put his body in a car by the Brooklyn Bridge. With Vikrant's death, Preeti and Guru each get half of the diamonds. When they are outside the bank, a group of policemen arrest them and take them to an unknown desert area. It is revealed that Vikrant is still alive and the first Vikrant was kidnapped by Chinese goons. Vikrant gets the diamond and tries to kill Guru. A fight occurs. At the end of the fight, Guru kills Vikrant. तो फिल्म में मोस्टली जो है फाइटिंग सीन देखे गए हैं डायमंड के पीछे, जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग भी करी गई थी. कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी कोई किसी को मार रहा है. When it's all over, they ask each other to find out who has the diamonds. Anmol has them and says he will give them to Guru if he gives
Preeti a divorce. Guru arrives at the location selected by Anmol and gets the diamonds while giving Anmol the divorce papers. Yeda Anna double crosses Guru and tries to steal the diamonds. Guru wins in a fight and Yeda gives the diamond to Guru while hanging him to a bar and having him stand on Chota Chhatri's shoulders. End में Anmol and his love Preeti are seen going to India, जहाँ पे Anmol's ex-father-in-law gives him some diamonds that he received from Guru. Preeti comments that she didn't know that Guru was so nice. काफ़ी जो है प्लानिंग प्लॉटिंग रही है फिल्म में, जिसकी वजह से फाइटिंग सीन भी रहे हैं और जो डायमंड्स थे जो कि मेजर कॉज रहा है लड़ाई का, वो भी देखा गया है। साथ ही साथ कॉमेडी कॉन्सेप्ट भी रहा है फिल्म में। अदर देन दिस, अवार्ड्स की बात की जाए तो अवार्ड विनिंग फिल्म रही है, जिसमें कि परेश रावल ने अवार्ड विन करा है। साथ ही साथ जॉनी लिवर ने भी फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल और जी सिने अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल भी विन करा है। स्क्रीन अवार्ड्स यानी कि परेश रावल ने 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, फिल्म फेयर, जी सिने और स्क्रीन अवार्ड्स, तीनों ही बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में उन्होंने अपने नाम करे हैं, जबकि जॉनी लिवर नॉमिनेटेड रहे थे फॉर द अवार्ड्स। कास्टिंग की बात की जाए तो अक्षय कुमार वॉज एज गुरु गुलाब खत्री यानी कि बलदेव के एक्स सन इन लॉ के किरदार में देखे गए। सुनील शेट्टी एज येरा अन्ना, परेश रावल रहे एज मनीलाल पटेल, आफ्ताब शिव दसानी देखे गए एज डॉक्टर अनमोल आचार्य, आरती छबरिया एज टीना यानी कि अनमोल के सेक्रेटरी, जॉनी लिवर एज छोटा छत्री, प्रीति झनगियानी एज प्रीति आचार्य, अमृता अरोड़ा एज मोना पटेल, राहुल देव रहे एज विक्रांत यानी कि बलदेव सन, सुप्रिया पिगलोकर एज परमजीत पटेल, ओमपुरी एज डॉन, असरानी एज चंपकलाल देखे गए हैं फिल्म में। तो वही म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक एल्बम जो कि कंपोज करा गया था बाय अनु मलिक की तरफ से म्यूज़िक कंपोजिशन रहा है, तो वहीं लिरिक्स रहे हैं और बाय समीर। गानों की बात की जाए तो टाइटल्ड आवारा पागल दीवाना was sung by शान एंड सुनिधि चौहान, जिसे हंसना रोना was sung by उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर। तो वहीं लव जो थीम सॉन्ग रहा था उसका डिस्क्लोज नहीं करा गया है कि किसने गाया है, तो वहीं मैंने तो खाई कसम के सिंगर्स रहे सुनिधि चौहान एंड अभिजीत। मोरे सावरिया was sung by सुनिधि चौहान, शान एंड अनु मलिक एज वेल। ये तूने क्या किया जो कि फिल्म में यूज़ नहीं करा गया था was sung by सोनू निगम एंड अनुराधा पौडवाल। या हबीबी was sung by अदनान सामी, शब्बीर कुमार एंड सुनिधि चौहान। फिल्म के जो मोस्टली सॉन्ग्स रहे हैं उनमें कंट्रीब्यूशन रहा है सुनिधि चौहान का और शान का भी, साथ ही साथ उन्हें कंपनी दी है उदित नारायण जी ने, सोनू निगम और अभिजीत एज वेल एज अदनान सामी, शब्बीर कुमार। बात की जाए फिल्म में देखे गए किरदारों से रिलेटेड उनके करियर के बारे में कि किस तरह उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, बेसिकली अक्षय कुमार जो कि लीड हीरो देखे गए हैं फिल्म में, बात करते हैं उनके बारे में, जो कि एक इंडियन बॉर्न नेचुरलाइज्ड कैनेडियन एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी है, मार्शल आर्टिस्ट, टेलीविज़न पर्सनालिटी है, मतलब एक ओवरऑल कंबाइंड पैकेज है फिल्म इंडस्ट्री में। द कमर्शियल हिंदी फिल्म्स में देखे गए हैं। वहीं over 29 years he has appeared in over 100 films
एंड काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करे हैं, जिसमें कि फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर है, और एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोलिफिक एक्टर हैं हिंदी सिनेमा के। स्टार हुए हैं 113 फिल्म्स में, और जिसमें कि 52 फिल्म्स वर कमर्शियल सक्सेसफुल। He was the first Bollywood actor whose film's domestic net lifetime collection crossed 20 billion by 2013 or 30 billion by 2016. Other than this, he has begun his career in 1991 with Saugandh. By his first mainstream success came a year later with the action thriller Khiladi movie. The film established him as an action star in the year 1990 and was the first of several films starring Kumar, which would later become commonly known as the Khiladi film series. Addition to the string of other action films, although his early twist with romance in ये दिल लगी जो कि 1994 में आई थी, पॉजिटिव रिव्यूज रहे हैं. It was in the next decade that Kumar expanded his range of roles. रिकॉग्निशन मिली है उन्हें अपने रोमांटिक फिल्म्स धड़कन, अंदाज, नमस्ते लंदन एज वेल एज द ड्रामा फिल्म वक्त से, अलॉन्ग विद पटियाला हाउस. तो वहीं कॉमिक परफॉर्मेंस की बात की जाए, लाइक इन द मूवी हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, भूल भुलैया, सिंह इज किंग met with acclaim as well. दोस्तों बात की जाए अगर अवार्ड्स की, तो रेसिपिएंट रहे हैं काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स फ्रॉम 13 nominations as बेस्ट विलन फॉर द मूवी अजनबी एंड बेस्ट कॉमेडियन फॉर गरम मसाला, and a National Film Award for Best Actor for the film रुस्तम and Airlift, जो कि दोनों ही 2016 में आई थी. 2018 में द यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर कॉन्फर्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ लॉ ऑन कुमार इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा. सिर्फ यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं. तो वहीं 2011 में द एशियन अवार्ड्स ऑनर्ड कुमार फॉर हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सिनेमा. ये तो रही बात अक्षय कुमार की. जानते हैं फिल्म से जुड़े अगले किरदार के बारे में, जो कि रहे थे सुनील शेट्टी एज येड़ा अन्ना, जो कि अपने आप में ही एक नोन एंटरप्रेन्योर और टीवी पर्सनालिटी है. प्रीडोमिनेटली अपीयर हुए हैं बॉलीवुड फिल्म्स में. करियर स्पैन की बात की जाए तो इक्विवेलेंट है अक्षय कुमार के, यानी कि मोर देन 25 ईयर्स हैं, जिसमें कि he has acted in over 100 films. His major work has been action and comedy films. He received Filmfare Awards out of 5 nominations for the movie धड़कन, जो कि one of the known film रही है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की. Other than this, बात की जाए तो he is the owner of the production house Popcorn Entertainment Private Limited, has produced a number of films including Khel, No Ordinary Game, Rakt and Bhagam Bhag, जो कि उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस के बैनर के अंडर प्रोड्यूस हुई थी. अदर वर्क्स की बात की जाए तो 2019 में ही इन्वेस्टेड एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन अ पुणे बेस्ड ऑनलाइन हेल्थ एंड फिटनेस स्टार्टअप फिटर. इट इज द फाउंडर Jitendra Chokse launched Fitter in January 2016 as a community on Facebook to address the challenges in the fitness industry, जिसमें कि Fitter now claims of over 1 lakh fitness transformations और highly engaged community है of 5,50,000 members की,
जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छा नंबर है टू बिकम अ मेंबर और टू बिकम अ कम्युनिटी इन द ऑनलाइन वर्ल्ड।